Good morning, 10th standard. Today we start the geography 4th lesson climate. In this lesson, we are going to compare in between Brazil and India. What is a Brazil rainfall is there. Now this map is Brazil map is there. Now see, there is a temperature, annual average temperature rainfall is given. Now see, there is a measurement is given about the temperature. See, there is a 3000 about 3000 millimeter rainfall, then 250. For that 3000 rainfall area, they give the dark shading. See, there dark shading is there. And for 2500 millimeter, there is a little bit light shading is there near the dark blue line. Now there is a 200, then there is a yellow shading is there below the 500. Now yellow shading is there. See, there 23 and 23 written is there. That yellow shading indicate there is a low rainfall is there. मतलब उधर क्या होता है, बहुत ही कम rainfall होता है. Now see here, this annual average is there for the Brazil. Now in India also there is a above below 4000 rainfall is there. That rainfall is given in the dark blue line, blue shading is there. Then there is a light one is there. This one means there is a that shading is decreasing. मतलब जो डार्कनेस रहता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है. नाउ द एनुअल टेम्परेचर एंड द रेनफॉल ऑफ द बार ग्राफ इज गिवन हियर. नाउ फर्स्ट वन, these twos are for the rainfall and these twos are these twos are for rainfall is there. Okay, now see here, and temperature is there here in first column. Okay, now rainfall. See here, rainfall, there is a Monsoon, Belem, then Porto Alegre and Rio de Janeiro. ये जो ब्राज़ील के जो ये है उनका क्या दिया है, उन्होंने रेनफॉल दिया है. नाउ देयर इज अ रेड लाइन इज इंडिकेट द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द ब्लू लाइन इंडिकेट द मिनिमम टेम्परेचर इज देयर. अंडरस्टैंड, मतलब उस टाइम का टेम्परेचर. एंड द रेनफॉल इज इंडिकेट बाय द बार ग्राफ. Understand, the rainfall is indicated by the bar graph. Now we are going to learn the difference between the Brazil and the Indian climate. Now first of all we see the Brazil. Now see all of you, Brazil, because of the vast latitudinal extent, understand all of you, because of the vast latitudinal extent of the Brazil, it experience wide range of climate. मतलब उधर क्या climate कैसा है, wide range climate is there. Now for the example, near equator it is a hot, while temperature type of climate is found near the tropic of Capricorn. मतलब उधर का जो टेम्परेचर है वो हॉट है. नाउ द ब्राज़ील गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. मतलब ब्राज़ील को जो भी बारिश गिरती है वो साउथ ईस्ट से जो भी विंड्स आते हैं, मतलब जो तूफान आते हैं उससे उधर क्या हो जाती है, ये हो जाती है. एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और नॉर्थ ईस्ट से जो तूफान आते हैं उससे क्या हो जाती है, उधर बारिश गिरती है. नाउ द पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थन कोस्ट. मतलब द पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ील के जो हाईलैंड है वो एक्सटेंड हुए हैं नॉर्थन कोस्ट तक. द escarpment act as an attraction to the winds coming from the sea and cause the orographic type of rainfall in the coastal region. मतलब जो कोस्टल रीजन में क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े हाईलैंड्स है उसके कारण जो भी विंड्स आते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं.
क्यों ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द दे कैनॉट गेट द प्रॉपर प्लेस टू गो द फॉरवर्ड, दैट्स वाई दे सेटल देयर एंड देयर इज अ सो ऑरोग्राफिक रेनफॉल इज देयर। मतलब उधर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इन द कोस्टल रीजन। बियॉन्ड द हाईलैंड द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस, एज ए रिजल्ट द रेनफॉल इज अ मिनिमल। जैसे ही इसका जो है ना हाईलैंड्स का मतलब जैसे हाईलैंड के आगे वो क्या हो जाते हैं, इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस, मतलब जब है ना तूफान कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपने आप वो है ना जो बारिश है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द रेनफॉल इज मिनिमम। नाउ दिस रीजन इज अ रेन शैडो रीजन। मतलब ये ना कायम क्या रहता है, रेन शैडो में रहता है। बिकॉज देयर इज अ क्लाउड्स आर कम एंड दे सेटल देयर, दैट्स वाई देयर इज अ एवरी टाइम देयर इज अ क्लाइमेट इज लाइक अ रेनफॉल इज देयर। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड अ ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, और उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कंसिडर द टेम्परेचर इन द ब्राज़ील, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ब्राज़ील इज हॉट वाइल। मतलब ब्राज़ील का जो नॉर्थन पार्ट है वो क्या है, हॉट है, वाइल द टेम्परेचर इन द साउथर्न पार्ट आर कंपेरेटिवली लोअर। मतलब जो नॉर्थन पार्ट है ना वो क्या है ना, नॉर्थ ये पार्ट है ना बहुत ही हॉट है ब्राज़ील का, नॉर्थ पार्ट है ब्राज़ील का वो क्या है, वो नॉर्थन पार्ट बहुत ही हॉट है कंपेयर टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन दिस पैटर्न। मतलब सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड इन दिस पैटर्न नियर द इक्वेटर एट द ब्राज़ीलियन कोस्ट। टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। मतलब इधर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता नहीं। इन द मतलब इक्वेटोरियल रीजन जो रहता है ना, मतलब जिधर स्नोफॉल होता है उस एरिया में, इक्वेटोरियल एरिया में उधर क्या नहीं होता है ज़्यादा, इक्वेटोरियल एरिया में ज़्यादा क्या नहीं होता है, टेम्परेचर होता नहीं है। नाउ दिस विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। और ये रीजन में ना क्या हो जाते हैं, जो भी विंड्स रहते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मूव होते हैं। सिमिलरली द कवरेजेस जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज़ वीक। मतलब उधर जो कवरेजेस विंड्स रहते हैं ना वो क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। एज ए रिजल्ट द साइक्लोन आर नॉट फॉर्म, और इसके कारण इधर क्या हो जाता नहीं है, साइक्लोन फॉर्म होता नहीं है। नाउ दैट इज़ वाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ द ब्राज़ील। इसलिए जो साइक्लोन रहता है ना वो ब्राज़ील में बहुत कम आता है। नाउ द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाई इन द ट्रॉपिकल रिजर्व जोन। मतलब इधर का जो बहुत सारा पार्ट है ना वो किधर है, ट्रॉपिकल जोन में। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। मतलब जो ट्रॉपिकल जोन है ना उधर जो है ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बिकॉज द इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इक्वेटर पास थ्रू द इक्वेटर नॉर्थर्न पार्ट से क्रॉस हो जाता है। द टेम्परेचर इन दिस रीजन इज मोर। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली इज 25 to 28 डिग्री। मतलब इधर का टेम्परेचर क्या रहता है, 25 to 28 डिग्री। द क्लाइमेट इज कूलर इन द हाईलैंड। और जो हाईलैंड्स रहते हैं ना, मतलब पहाड़ जो रहते हैं उधर क्लाइमेट क्या रहता है, कोल्ड रहता है, कूल में रहता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिलिटी टू द सी। मतलब सी से वो क्या रहता है, बहुत है ना हाई रहता है, इसके कारण है ना क्या हो जाता है, उधर क्लाइमेट क्या हो जाता है, कूल रहता है। द अमेजन वैली रिसीव अराउंड 2000 मिलीमीटर रेनफॉल। अमेजन वैली में 2000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। वाइल द नॉर्थर्न ईस्ट कोस्ट रिसीव द 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। और जो नॉर्थर्न ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थर्न ईस्टर्न कोस्ट में 1000 से लेके 1200 तो क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। मतलब साउथर्न में ज़्यादा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली नॉर्थर्न से। Now there is some temperature map and rainfall map is given about the India. There is the first one is Delhi, then Mumbai is there. Okay, now there is a Kolkata and Chennai is given. Now see there is a average annual temperature and precipitation graph. मतलब बारिश का उन्होंने क्या दिया है, ग्राफ दिया है। Now we are going to learn this the rainfall about the India.
how the rainfall is there in India, and in which state there is a more rainfall is there, and which state there is a less rainfall. That all things we are going to learn. Now see here, India climate is a monsoon type. मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडियाज क्लाइमेट इज टाइप मानसून टाइप. द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर. मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर मतलब सन रेज क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं. विच पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, और वो कंट्री से मिडल में पास होते हैं. द एवरेज टेम्परेचर हायर थ्रू आउट द ईयर, और जो है ना पूरे साल में है ना टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. ऑल्सो द टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड द साउथ, और साउथ में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है. इन द विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द 40 डिग्री इन द जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर में 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है. पार्ट्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ हिमालय, और हिमालय के बहुत सारे रीजन में ये टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाता है. द डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेटिक condition of the India are due to the latitudinal location and the altitude of the place. The Indian Ocean and the Himalayan range exert a great influence on the climate of the India and the origin of the monsoon. Very cold winds blow from north are obstructed by the Himalayas. Similarly, the southwest monsoon retreat from the Shivalik and Himachal range of the Himalayas. Because of the high temperature in summer, low pressures are developed in the Punjab plain and the third desert of the Rajasthan. This attract winds coming from high pressure region of Indian Ocean, which start blowing toward the mainland of India. This moisture laden winds bring the rainfall. मतलब very cold winds blowing फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हिमालय. मतलब जो एकदम है ना ठंडे बादल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हिमालय के कारण क्या हो जाते हैं, अड़ जाते हैं. सिमिलरली साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंज, और जो साउथ वेस्ट में जो भी बारिश गिरती है उसमें भी क्या होता है, शिवालिक और जो हिमाचल रेंज है इसके कारण वो पूरे बादल क्या हो जाते हैं, द क्लाउड्स आर सेटल देयर एंड देयर इज अ रेनफॉल इज देयर. बिकॉज ऑफ द high temperature in the summer, low pressure area develop in the Punjab plain, and where the temperature is high, मतलब जिस प्लेस पे जिस सिटी में भी टेम्परेचर हाई है उधर का जो बारिश है, what happen about that, the third desert of the Rajasthan. This attract winds coming through the high pressure region in Indian Ocean. Indian Ocean से जो भी winds आते हैं हाई प्रेशर के, which start blowing toward the mainland of India, और वो mainland of India में क्या हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं ब्लो होने के. दिस मॉइस्चर और दैट विंड्स कैरी सो मच हॉटनेस, दैट्स वाई व्हेन दे कम देयर मीन दैट विंड्स आर कूलर, बट व्हेन दे इंटर इन द हॉट प्लेस, मतलब जब भी वो कूल एयर कूल विंड्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के सिटीज़ में ब्लो होते हैं, देन देयर इज़ अ मॉइस्चर्स आर कम, एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर देयर इज़ अ रेनफॉल इज देयर. बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इट रेन मोर इन द कोस्टल एरिया. और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के कारण जो भी बादल्स होते हैं, जो रेनफॉल्स होता है वो ज़्यादा होता है कोस्टल एरिया में, क्योंकि क्या हो जाता है उधर क्या हो जाता है, जो अपने जो विंड्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं उधर सेटल डाउन हो जाते हैं. The rainfall reduce in the leeward side of the hills. These winds blow parallel to the Aravallis पर्वत. मतलब ये जो है ना रेनफॉल रिड्यूस इन द लीवर्ड साइड ऑफ हिल, और हिल के वो साइड मतलब हिल जिधर तक है, मतलब जो पहाड़ जब तक है तब तक वो रेनफॉल उधर गिरता है, लेकिन अगर वो विंड से ना आगे ब्लो होते हैं तो उधर रेनफॉल रिड्यूस हो जाता है. बिकॉज दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावली पर्वत, और जो है ना वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल्स क्या होते हैं, ब्लो होते हैं. एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन द पार्ट ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान, और उधर क्या हो जाता है, उधर कोई भी पहाड़ और हाईलैंड्स नहीं है, इसके कारण उधर के जो विंड्स है वो पैरेलल ब्लो होते हैं, और उधर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, इसके कारण उधर है ना क्या हो जाता है, कम रेनफॉल होते हैं. बट इन द कोस्टल एरिया देर इज अ सो मच हाईलैंड्स आर प्रेजेंट, एंड दैट हिमालय, देन शिवालिक रेंज, हिमाचल
coastal range is there. Because of that there is a obstruction is there for the winds, and that winds are settled down there, and there is so much rainfall is there. But in the Gujarat and Rajasthan there is no highlands are present, and because of that winds are blow parallel, there is no obstruction is there. That's why there is a low rainfall is there. These winds move toward the Himalayas, their moisture carrying capacity increase, और उसकी जो moisture carrying capacity हो जाती है वो increase होते हैं. The orographic rainfall types of because of the natural obstruction of Himalaya, और उधर क्या हो जाता है हिमालयस के कारण, और जो winds में moisture होता है उसके कारण उधर orographic rainfall होते हैं. Orographic rainfall means that rainfall is cannot stop for 2 or 3 months. These winds return to the Himalayas range and their retreating journey start. While the blowing from north east toward the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. और बाद में जैसे वो हिमालय से ऑब्स्ट्रैक्ट होते वो वापस आते हैं ब्लो विंड्स, तो वो इंडियन ओशन से बहते हुए वो कोई पेनिसुला में क्या करते हैं वापस वन मोर टाइम क्या करते हैं रेनफॉल करते हैं. नाउ दिस इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया. इन दिस क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द ईयर, और इसके कारण बारिश गिरती है तभी भी इंडिया में क्या हो जाता है कोई प्लेस में पूरा 12 ही महीने क्या रहता है गर्मी रहती है. एज द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, इंडिया इज कंसिडर टू बी द ट्रॉपिक रीजन, और इंडिया को क्या करते हैं ट्रॉपिक रीजन कंसिडर करते हैं. इंडिया फेस द नेचुरल डिजास्टर लाइक एरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड्स etc. और इंडिया में क्या हो जाता है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं किसके कारण, ये एरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन एंड फ्लड्स के कारण. द हॉट वेदर सीजन, द सीजन ऑफ रेनफॉल. नाउ देयर आर 4 सीजन एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. कौन कौन से देखो. द हॉट वेदर सीजन मीन्स समर इज देयर. द सीजन ऑफ रेनफॉल मतलब मानसून, बट देयर इज द रिट्रेटिंग मानसून इज देयर. परतीचा पाऊस बोलते उसको. द कोल्ड वेदर सीजन मतलब देयर इज अ कोल्डनेस इज देयर इन द क्लाइमेट. दैट्स वाई there is a everywhere there is a what is there everywhere there is a cool climate is there. Now see here there is some pictures are given, and that traffic jam due to the rainfall in Brazil. Now the traffic jam due to rainfall in India. Now what they give you from that picture means they follow the rules in Brazil, but in India there is no any rules are there, and there because of that there is a everywhere the traffic is we can see. Now the dry land in the droughts offer region India, मतलब इंडिया के ड्राई लैंड्स. एंड वाई दिस हैपेंड बिकॉज देर इज़ नो रेनफॉल इज देयर फॉर 1 or 2 years. If there is no rainfall for the 1 or 2 years, then there is a drought is there, and that particular area there is no any crops are cultivated. Now snowfall is happened in the equatorial region. That equatorial region means Jammu Kashmir, then Shimla in that place. Now there is a Brazil rainfall is given, deforestation of Brazil, and because of that deforestation also there is so much problems are come for the rainfalls also, because there is no obstruction is there. Now the well sources of water in India, sources of water means so much water we get from the well. Because of that well get a water from the water level of the ground water level. And droughts, quadrilateral region of Brazil में भी droughts होता है. And these all the things are because of the climate. We also survive because of the climate. We cannot live without the climate. Now the paddy farming is there in India, means there is a rice is there, they cultivate when the monsoon is there. In the Thane district so much paddy fields are there, means they take the rice crops in their field, because that monsoon season is so monsoon season is so useful for that
paddy crops. Understand all of you? Now we completed the lesson. Your work is there. You have to write the question answers of this lesson. Okay, all of you, 10th standard. There is a question answer are given. Write the name of state, region of the approximate column. Now there is a state whether true or false is there. Give the geographical region is there. Answer the following question is there. That all things you have to complete it and send me on my mobile number. Thank you all of you.